ویلکم بیک۔ پاکستان کی تاریخ میں حکومت کے 5 سال، جمہوری حکومت کے 5 سال مکمل ہونے پہ عوام بہرحال مقابلہ کریں گے کہ کس لیڈر نے کیا کام دکھایا، کس صوبے نے کیا کیا اور وفاقی حکومت نے کیا کیا۔ صوبوں کا جب مقابلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ منصوبے سے مقابلہ ہوگا۔ اگر لاہور میں میٹرو بس سروس سامنے آئی ہے 30 ارب کی لاگت سے تو ظاہر ہے پوچھا جائے گا کہ کراچی میں اس قسم کا کون سا منصوبہ سامنے آیا۔ اگر لاہور میں 40 کلومیٹر طویل رنگ روڈ بنی تو یہ پوچھا جائے گا کہ کراچی میں اس لیول کا کون سا منصوبہ بن کے مکمل ہوا۔ اگر لاہور میں 400 اسپتال کا شاہدرہ اسپتال بنا، 400 بستروں کا شاہدرہ اسپتال بنا تو ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا کہ کیا کراچی میں کوئی اس نوعیت کا اسپتال بنا یا اس قسم کا کوئی اسکول یا کالج کھلا۔ یہی معاملہ ہوگا پورے پنجاب کا اور پورے سندھ کا اور اسی طرح کے دوسرے صوبوں کا، لیکن جو حال اس وقت سندھ کے اندر نظر آتا ہے اس کا مقابلہ پنجاب سے کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں انڈیپینڈنٹ جو بھی طریقہ کار ہے اس کو دیکھا جائے اور منصوبے سے ملایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پچھلے 50 سالوں کے دوران پنجاب کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 481 ارب روپے کے منصوبے پنجاب میں دیکھنے میں آئے، جس میں بڑے ترقیاتی منصوبوں پر 196 ارب روپے خرچ کیے گئے اور چھوٹے منصوبوں پر 285 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ شعبہ تعلیم میں حکومت پنجاب کے مطابق 66 نئے ڈگری کالجز کھولے گئے۔ ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا کہ سندھ میں کتنے ڈگری کالجز کھولے گئے۔ 13 انٹرمیڈیٹ کالجز کو ڈگری کالجز کا درجہ دیا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی فلاحی فنڈ میں 10 ارب روپے رکھے گئے، جس میں مستحق طلبہ کو پنجاب کی حکومت اسکالرشپ دیتی ہے، غریبوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ سندھ میں پوچھا جائے گا کہ اس قسم کے فنڈ سے کیا کیا جاتا ہے۔ 12 لاکھ سے زائد طلبہ کو 2 لاکھ سے زائد طلبہ کو پنجاب میں مفت لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں، جس کی چاہے سیاسی وجوہات ہو، لیکن بہرحال بچوں کے ہاتھ میں 2 لاکھ لیپ ٹاپ آ چکے ہیں، 2 لاکھ بچوں کے ہاتھ میں۔ لاہور میں IT یونیورسٹی کا قیام ہو رہا ہے۔ ملتان اور بوریوالہ میں زرعی جامعات قائم کی جا رہی ہیں۔ ملتان، بھاورپور، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں خواتین یونیورسٹیز کا قیام ہو رہا ہے۔ 4 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 4286 اسکولوں میں IT لیبس قائم کی گئی ہیں۔ گجرات، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، سیالکوٹ اور گجراوالا میں میڈیکل کالجز قائم کیے گئے ہیں۔ صحت میں راولپنڈی میں کارڈیالوجی اور یورولوجی سینٹر کا قیام ہوا ہے۔ بھاولپور میں 2 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 410 بستروں پر قائم ایک اسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ سرگودا میں 400 بستروں پر ایک اسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ گجرات سے اسلام آباد تک انٹرچینج 2 رویہ سڑک کر دی گئی ہے۔ قصور اور دیول پور کو 2 رویہ روڈ کر دیا گیا ہے۔ لاہور قصور سیکشن کو 2 رویہ کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں چاندنی چوک پر فلائی اوور کی تعمیر، راولپنڈی میں 6 جنکشن پر فلائی اوور کا تعمیر، میاں والی اور جد اٹک کے درمیان برج کی تعمیر، عبداللہ پور فیصل آباد میں انڈر پاس کی تعمیر، اس کے علاوہ پیر بدائی راولپنڈی کے قریب پشاور روڈ پر فلائی اوور کی تعمیر۔ یہ تمام منصوبے ہیں جو اس دوران دیکھنے میں آئے ہیں۔ 417 ارب روپے کے منصوبے ہیں اور یہ پنجاب کی کارکردگی جس کو سامنے رکھنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا تو دوسرے بڑے صوبے سندھ سے مقابلہ کیا جائے گا۔ منصوبہ ٹو منصوبہ دیکھا جائے گا کہ اگر پنجاب میں یہ کیا گیا تو اس کے مقابلے میں سندھ پہ کیا کیا گیا۔ سندھ کا ایک طائرانہ جائزہ آپ کو دیتے ہیں، سندھ کے 5 اضلاع کا جائزہ ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ شکارپور اور جیکب آباد کا احوال ہمیں دیں گے مکیش رپیٹا، میرپور خاص کا ہمیں دیں گے محمد خالد، اور دادو کا احوال ہمیں دیں گے ریاض ناریجو، جبکہ سانگڑ کا احوال ہم حاصل کریں گے اختر قریشی سے۔ سندھ کے ان اہم چھوٹے اضلاع کا کیا احوال ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ان کورسپونڈنٹس کی رپورٹ میں۔ میرپور خاص میں ترقیاتی کاموں کی کیا صورتحال ہے، اس کا ایک اندازہ یہاں کی سڑکیں دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ 2011 کے سیلاب کے بعد تباہ ہونے والی سڑکوں کی ضروری مرمت تک نہیں کی گئی۔ شہر میں فراہمی آب کی زیر زمین لائنیں ڈالنے کے منصوبے کا اعلان تو ہوا، لیکن یہ کام آج تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ شہریوں کو بدبودار پانی مل رہا ہے، جس کے باعث مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ واٹر سپلائی اسکیم کی استعداد کار میں اضافے کے لیے منصوبے کا اعلان تو ہوا، لیکن فنڈز نہ ہونے کے باعث یہ بھی التوا کا شکار ہے۔ نامور تعلیمی اداروں کی سالانہ گرانٹ تک روک لی گئی ہیں، جس کی ایک مثال معروف تعلیمی ادارہ میرپور خاص پبلک اسکول ہے۔ جس جگہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں پر کسی زمانے میں میرپور خاص میڈیکل کالج کے قیام کا نہ صرف اعلان ہوا تھا بلکہ میرے عقب میں تختی لگی ہوئی ہے، یہاں پر بھی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ تاہم 5 سال گزرنے کے باوجود میڈیکل کالج کے قیام تو دور کی بات، یہاں ایک اینٹ تک نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے شہریوں میں زبردست طریقے سے احساس محرومی پایا جا رہا ہے۔ تاہم 5 سال گزرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ حکومت میڈیکل کالج کے لیے نئی جگہ ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے لیے میٹنگیں اور اجلاس جاری ہیں۔ جیکاباد اس کے اطراف گاؤں گوٹھوں کی مجموعی صورتحال 2008 اور 2013 کے دوران میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ
तरक्याती काम तो कराए गए, लेकिन 2010 के सैलाब में यही जो सब तरक्याती काम थे, सड़कें थी, स्कूल की इमारतें थी, तमाम के तमाम जो तरक्याती काम थे वो ज़ाया हो गए। और फिर 2011 में तरक्याती काम कराए गए, लेकिन 2000 बारिशों की जो बारिशें हुई उसमें तमाम जो मंसूबे थे उसमें फिर ज़ाया हो गए। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन तमाम मंसूबों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। सिंध बलोचिस्तान की कौमी शाहराह जो अभी करोड़ रुपए की लागत से तमीर की गई, 2012 की बारिशों में तबाह हाल हो गई, अब वो खंडरात का शिकार हो गई है और वहाँ का जो 5 मिनट का सफर है वो अब 2 घंटों में तय हो रहा है। इसके अलावा शहर की जो तमाम सड़कें थी, मुंसपुल रोड था, कायद-ए-आज़म रोड और दीगर जो सड़कें हैं वो इन्हीं नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से तबाह हो गई। सरकारी इमारतें, सरकारी स्कूलों की जो करोड़ रुपए खर्च किए गए, उन स्कूलों में बच्चों के लिए ना कोई सहूलत है। बच्चे अब भी जमीन पर बैठकर वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूलों की छतें नहीं हैं, लेकिन वहां पर कागजात में जो है महकमा एजुकेशन वर्क्स की जानिब से करोड़ रुपए दिखाए गए हैं कि इन स्कूलों के नाम पर तरक्याती काम किए गए हैं। शिकारपुर में भी करोड़ों अरबों रुपए तरक्याती कामों के नाम पर सड़कों की तामीर, स्कूलों की तामीर और सरकारी इमारतों, हेल्थ की सहूलियात और दीगर अवामी सहूलियात के नाम पर खर्च किए गए। लेकिन 2010 के सैलाब ने वो तमाम जो खर्च किए गए रकम थी वो ज़ाया हो गई। इसके अलावा फिर 2011 में शिकारपुर की तमाम सड़कों की तामीर की गई, लेकिन 2012 में वही सड़कें बारिशों की वजह से तबाह हो गई, जिसकी वजह सबसे मेन वजह यही है कि शिकारपुर के तरक्याती कामों में जितना भी तरक्याती काम हुए हैं वो तमाम तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर कहा जाए कि दादू जिले का शुमार खुशकिस्मत अजला में होता है और बदकिस्मत अजला में होता है, वो कुछ इस तरीके से कि खुशकिस्मत अजला इसलिए कि यहाँ पर सूबाई वज़ीर मज़हर और पीपल पार्टी के ज़िले सदर और रुकन कौमी से रफ़ीक जमाली की बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर आई। और इस बदकिस्मती इस हवाले से भी कही जा सकती है कि जो पी मज़हर की सूबाई वज़ीर पी मज़हर की स्कीमें थी उनको ससी तो मसलों का शिकार रहीं। उन्होंने बहुत सारे काम प्रोफेशनल ठेकेदारों को देने के बजाय जालों को दिए, उसी वजह से वो स्कीमें न सिर्फ मुकम्मल ना हो पाई बल्कि नाकिस मटेरियल की वजह से वो काफ़ी उनका काम तसल्ली बख्श नहीं रहा। उनकी पी मज़हर की स्कीमों में एक बहुत काबिल जो कही जाती है स्कीम, अहम स्कीम, वो पी इलाही बख्श लॉ कॉलेज है, वो मुकम्मल हुआ है इन 5 सालों में। बाकी उनकी बहुत सारी और स्कीमें ऐसी हैं जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस और पी इलाही बख्श लॉ कॉलेज की बिल्डिंग और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी स्कीमें उनकी ऐसी थी जो अभी 5 साल के मुद्दत गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। बदकिस्मती से इन शराब को 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन 3 सालों में जो स्कूल तबाह हुए थे देहात में, जो देहात तबाह हुए थे, जो रास्ता सड़कें टूटी थी, उनमें 70% काम अब भी होना है। जिला सांगड़ एक उजड़े दियार का मंजर पेश कर रहा है। 2011 में यहाँ पे बदतरीन सैलाब आया था, जिसके नतीजे में यहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होकर रह गए थे। सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल तमाम बर्बादी का मंजर पेश कर रहे थे। होना ये चाहिए था कि उसी सतह के ऊपर तरक्याती काम अंजाम दिए जाते, लेकिन यहाँ पर 5% भी तरक्याती उमूर अंजाम नहीं दिए जा सके हैं। 1 अरब रुपया सालाना यहाँ का जिले सांगड़ का बजट है, लेकिन ये बजट कहाँ खर्च होता है कोई मालूम नहीं। सबसे बदतरीन हालत महकमा हाईवेज की है, जहां पर नवाबशाह, मीरपुर खास, खिपरो को मिलाने वाली सड़कें और देहातों को शहरों से मिलाने वाली सड़कें तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रही हैं। और सिर्फ मीरपुर खास जाने के लिए लोगों को 40 मिनट के बजाय 2.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। सिंध के दूसरे अजला का भी हाल हम आपके सामने देंगे और इंतखाबात से कबल, जैसे कि मैंने कहा, मंसूबे से मुकाबला होगा और शहरी जरूर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या वाकई 5 साल में जिनको वोट दिए गए उन्होंने अपना हक अदा किया। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहिरुल कादरी के लिए आज कठिन दिन था। इंतहाई अहम सवालात थे और उनका अक्सर का ताल्लुक उनकी दोहरी शहरियत से था। और इसके अलावा आज एक और ये इंकशाफ हुआ है, हैरतनाक इंकशाफ है कि हाई कोर्ट के कुछ जज साहिबान हैं जो इनकम टैक्स देते ही नहीं हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इलेक्शन कमीशन की तहलील चाहते हैं और अपनी इस्तदा लेके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां पर आज अहम समाअत थी। ये वाकई उनकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इसकी समाअत थी। इस इस्तदा के बारे में, उनकी आईनी पटिशन के बारे में कुछ माहिरीन कह चुके हैं कि इसके जरिए इंतखाबात का इल्तवा भी हो सकता है और अबूरी हुकूमतों के क़याम में उसके बाद उनकी तोसी भी हो सकती है। बहुत अहम और नाजुक मामला है और आज इस सिलसिले में बहुत अहम दिन था। आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ
ने पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे अहमियत जिस बात को दी वो उनकी दोहरी शहरियत है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम सवालात उठाए गए जिनका जवाब जनाब ताहिरुल कादरी कुछ दे पाए कुछ नहीं दे पाए, मगर उनके लिए ये मुश्किल मरहला था और वही मुश्किल मरहला जारी रहा जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकले और मीडिया उनका मुंतजिर था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गुफ्तगू हुई डॉक्टर ताहिरुल कादरी और बेंच के दरमियान बहुत अहम है, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत के हवाले से ये सवालात और उनके जवाबात भी बहुत अहम है, और हो सकता है इसका असर उनकी इस इस्तदा पर भी पड़े। ये क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं और इस्लामाबाद जाएंगे जहां हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत अहम और दिलचस्प क़य्यूम साहब, जो मुकालमा हुआ है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच के साथ, उसका कुछ अहवाल दें, बड़े दिलचस्प सवाल जवाब हैं। जी कानून साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां बहुत से दीगर मुतअद्दिद मुकदमात थे उनमें एक मुकदमा ये भी था, और इस मुकदमे की जब समाअत शुरू हुई है तो उसमें ताहिरुल कादरी से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो जजेस साहबान थे उन्होंने उनके लोकस स्टैंड आए के हवाले से कि उनके पास ऐसा कौन सा कानूनी जवाज़ है कि वो अदालत के अंदर आए हैं, और अदालत की ये 184(3) की जुरिस्डिक्शन उन्होंने इन्वोक करने के लिए इस्तदा की है कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उनका तारुफ क्या है, उनका कानूनी जवाज़ क्या बनता है ये दरख्वास्त दाखिल करने के हवाले से, उनका कानूनी हक़ क्या है। और इस पर अदालत की तरफ से जब उनसे ये पूछा गया तो उस पर ताहिरुल कादरी जो है उन्होंने अदालत से ये कहा कि वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं और कनाडा की शहरियत भी उनके पास है। और इस पर अगला सवाल अदालत का ये था कि आपने ये कनाडा की शहरियत कब ली, तो उस पर उन्होंने एक तफसीली जवाब दिया अदालत के रूबरू के उन्होंने 99 में ये दरख्वास्त दी थी कैनेडियन शहरियत के लिए, और 2005 में उनको शहरियत मिली। तो उस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने जो शहरियत ली है तो क्या आपको कोई जान का ख़तरा था, आपको कोई धमकी थी? तो इस पर ताहिरुल कादरी का ये कहना था कि उन्हें कोई बिल्कुल किसी किस्म की धमकी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने जो कनाडा का मामूल का कानून है उसके मुताबिक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उनके कवानीन, कैनेडियन कवानीन के तहत इमिग्रेशन के लिए और फिर शहरियत के लिए दरख्वास्त दी थी, जो कि 2005 में उनको शहरियत मिली। इस पर अदालत ने उनसे अगला सवाल किया कि कानून के मुताबिक, जो कैनेडियन कानून है उसके मुताबिक शहरियत से लेने से पहले हल्फ उठाना पड़ता है, हल्फ, और वो भी वफादारी का हल्फ जो है उठाना पड़ता है उस मुल्क से। तो क्या आपने वो हल्फ उठाया? तो उनका कहना था कि उन्होंने हल्फ उठाया, और इस पर अदालत ने कहा कि वो जो हल्फ था क्या आप वो अदालत में पढ़कर सुना सकते हैं? तो उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके पास उसकी कॉपी मौजूद नहीं है। और इस हवाले से जब उनका ये था कि ये सवाल नहीं है, इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब सवाल वही है जो हम आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ है। कल भी इस केस की समाअत होगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे। अदालती मामलात में आज एक अहम बात सामने आई है। जजेस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी, यानी कि वो कमेटी जो जजेस के तकर्रुरी और उनके इश्यूज़ के बारे में फैसले साजी में अब शरीक है। जुडिशल कमीशन ने, सिंध जुडिशल कमीशन ने रिकमेंड किए थे 3 जजेस के नाम कि उनको मुस्तकिल कर दिया जाए। आज जजेस पार्लिमानी कमेटी ने उनमें से 2 के नाम मुस्तरद कर दिए, और उस पार्लिमानी कमेटी जिसमें जनाब एतजाज़ अहसन शामिल है, उसने कहा कि इन 2 जज साहिबान को मुस्तकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टैक्स नादहिंदा हैं, वो टैक्स नहीं देते। इस सिलसिले में आज ये बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें 26 जनवरी 2013 को जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 3 जजों की जो मुस्तकिली की सिफारिश की थी, उसमें आज कमेटी ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस शफी सिद्दीकी को मुस्तकिल करने की मुखालफत कर दी। जनाब एतजाज़ अहसन ने कहा कि कमेटी को एतराज़ है कि ये जजेस टैक्स नादहिंदा हैं। उन्होंने कहा कि जब टैक्स नादहिंदा सियासतदान की नहली की बात की जाती है तो ये मेयार जजेस के लिए भी होना चाहिए। आज जनाब एतजाज़ अहसन ने यह कहा, और उसके साथ इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट के इन 2 जज साहिबान की मुस्तकिली को मुस्तरद कर दिया पार्लिमानी कमेटी ने। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। आज बहुत अहम दिन था हुकूमत के लिए, बुरी खबर, और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। आज पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोते हुए डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए का हो गया। बहुत ही बदतरीन खबर है, और एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ना सुनाई दे रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं। कौम को बताएं तो सही कि आखिर मैशियत के साथ क्या हो रहा है। इसका अहवाल आपको देते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। आज मौजूदा हुकूमत के दौर में एक और काबिल जिक्र रिकॉर्ड बना, और आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की सतह 100 रुपए की हो गई है। 100 रुपए का $1 हो गया है। जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो यही $1 62 रुपए का होता था। 61% गिरावट आई है पाकिस्तानी रुपए की कदर में, और आज
3 डिजिट पर पहुंच गया डॉलर, जो कि खुद एक बड़ा रिकॉर्ड है। खित्ते के अतराफ में देखा जाए तो खित्ते के मुल्कों की करेंसी में मुसलसल इजाफा और क़ुव्वत में इजाफा हो रहा है, जैसा कि भारत की करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है, हत्ता कि अफगानिस्तान की करेंसी भी बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तान की करेंसी 4 साल के अंदर 61% गिरी है। 62 रुपये वाला डॉलर अब 100 रुपये का हो गया है। अलमनाक बात यह है कि इसकी तफसील देने के लिए, इसकी वजूहात बताने के लिए हुकूमत की कोई शख्सियत सामने नहीं है। पाकिस्तान की मईशत पे किस चीज़ के असरात हैं, पाकिस्तानी रुपया क्यों कदर खो रहा है, पाकिस्तान के कर्जों में मुसलसल क्यों इजाफा हो रहा है, पिछले 5 साल में पाकिस्तान के कर्जों में 150% इजाफा हो चुका है। इन सब के जवाबात मतलूब है पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से। लेकिन एक आम सिलसिला यह है डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के साथ कि वो ना नजर आते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना बोलते नजर आते हैं, ना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते नजर आते हैं। पाकिस्तान के वजीर खजाना, ना नजर आने वाले वजीर खजाना आज भी नजर नहीं आए, जबकि रुपया डॉलर 100 रुपये का हो गया। और एक बार फिर ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब पाकिस्तान के कर्जे 15.15 खरब रुपए की सतह तक पहुंच चुके हैं। 150% इजाफा कर्जों में सिर्फ 2008 से लेके आज तक हुआ है। डॉलर की आज की सतह और ये कितनी बुरी खबर है, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और माशी उमूर के तजियाकार जनाब एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। 100 रुपये का डॉलर हो गया है, ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है और हुकूमत किस हद तक जिम्मेदार है इस सूरत हाल की? देखिए जी कामरान साहब, इस पे तो टोटल जिम्मेदारी तो हुकूमत ही की है। मुझे अच्छी तरह याद है महीना पहले जिस अंदाज से स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस जो हैं सलीम मांडवी वाला को एक टास्क दिया गया था कि ये आप 95 रुपये तक इसको आप रखेंगे, इससे आगे नहीं जाना चाहिए डॉलर की सतह जो है ना। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह आज 100 की हद ये क्रॉस कर गया है, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि कोई ओनरशिप नहीं लग रही गवर्नमेंट की तरफ से, और एक यूँ लग रहा है कि बाकायदा एजेंडे के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो किसी तरीके से भी जो है ना वो डॉलर की कीमत बढ़ती चली जाए और इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं जाए। बुनियादी 2 सवाल हैं जो सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये कि टोटल हमारे यहाँ जिस इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, फॉरेन इन्फ्लोज हमारे ख़त्म हो गए। अभी पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि 245 मिलियन डॉलर का जो एक करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था, वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि 1.9 बिलियन डॉलर कोलेशन सपोर्ट फंड के आगे थे। अदरवाइज आप देख लें कि बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा। हमारी रेमिटेंस जो है उस पर हमारा टोटल सारा हमारा मेन स्टे हो चुका है। बाकी आप देख लें कि IMF ने मदद देने से इनकार किया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो सालाना 5 अरब रुपए की हमें जो प्रोग्राम लोन देते हैं वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन जब से IMF का प्रोग्राम हमने ख़त्म किया है, सिर्फ प्रोजेक्ट एड उनकी आ रही है। इन हालात में तो लोग ये आमतौर पे हक बजाने में यह कहते हुए कि ये टोटल गवर्नमेंट के पास पे उसका फेलवर है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। और जिस अंदाज से लगता है कि ये लोगों को बिल्कुल मौका दे दिया गया है कि वो डॉलर बढ़ाते चले जाएं और पैसे जो है ना वो पैसे की और इत्शाम साहब, ये जो रुपए की कदर नुमाया तौर पर कम हो रही है, इसके असरात कहाँ कहाँ नजर आएंगे? देखें जी, सबसे पहले तो हमारा इंपोर्ट बिल है। आप देख लें कि इंपोर्ट बिल इस वक्त हमारा जो हम देख रहे हैं कि दुगना हो चुका है, 11.5 से 12 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इस पे जद पड़ेगी, अगर ये बढ़ेगा तो एकदम से आप देख लें। फिर हमारा डेट जो है ना फॉरेन डेट, उस पर जद पड़ेगी। फिर आप ओवरऑल प्राइसेस आप देखेंगे बढ़ेंगी, और फिर आम आदमी की ये अशिया जो है ना इंपोर्ट की जाती हैं वो उस पर असर पड़ेगी। सब चीज़ जो है ना क्रॉस द बोर्ड महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान के पास कोई फॉल बैक करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई जिसको रोक सके, सिवाय इसके कि कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती इस मुल्क में, वो की जाती, वो ना हुई। ना हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक IMF का कोई नुस्खा एक्सेप्ट किया, ना जो लोकल लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पाकिस्तान को एक सारी हालत तो ठीक करने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए, वो हुआ। इन हालात में हमारे फॉरेन इन्फ्लोज जो है ना वो बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। लोकल इन्वेस्टर जो आपका बांग्लादेश, दुबई, इवन इंडिया जाना शुरू हो गया। इन हालात में लोग कह रहे हैं कि ना तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस रह गया कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। हमारी एक्सपोर्ट देख लें अगर 20-22 बिलियन की है तो इंपोर्ट हमारी जो है वो 30-35 बिलियन की है। तो सवाल अहम यह है कि क्या इसमें इस तफावत को रोकने की हुकूमत ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। एनर्जी का क्राइसिस इतना सीरियस हो गया कि इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बंद हो रही है। इन हालात में सिवाय इसके कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करें कि सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी 100% हुकूमत की है। डॉलर आज 100 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब कराची में कत्ल गारत है कि रुकने का नाम नहीं लेती। आज ही के दिन 9 ऐसे लोग जिनका कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं था, बेगुनाह मार दिए गए। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک۔ آج کا دن ختم نہیں ہوا ہے لیکن کراچی میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق 9 لوگوں کو کراچی کے مختلف مقامات پہ گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل قیوم آباد کے قریب کراچی کے ایک پیٹرول پمپ پہ حملہ کیا گیا جس میں ایک پہلے سے نصب شدہ بم کو پھوڑا گیا۔ حکام کہتے ہیں کہ اس کا نشانہ وہاں پہ موجود سب اسٹیشن تھا۔ کراچی کے آج کی قتل و غارت کی تفصیلات ہمیں دیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ افضل ندیم۔ افضل ندیم، آج بتائیے گا آرا دن کس طرح سے قاتلوں نے مظلومین کو اور بے گناہ لوگوں کو مارا؟ جی کامران صاحب، 24 گھنٹے میں جو گزشتہ پچھلے دنوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، لگ بھگ 10 کے قریب اوسط کی ہلاکت ہوتی ہے اور وہی آج کا دن بھی اسی طریقے سے گزرا ہے۔ لیکن آج کا دن ذرا زیادہ خوفناک اس لیے تھا کہ صبح 1 گھنٹے کے دوران 5 کے قریب ہلاکتیں ہوئی شہر کے مختلف علاقوں میں۔ ان میں پولیس افسر کو مارا گیا۔ دن کے اندر جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ ایک جو مذہبی جماعت کے کارکن تھے اس کو وہ کیا گیا۔ دہشت گردی کی ایک واردات جو تھی وہ عباس ٹاؤن میں ہوئی جہاں بوری میں بند 2 افراد کی لاشیں ملی، تشدد زدہ لاشیں ملی، جبکہ گلشن معمار کے علاقے میں 3 سیاسی کارکنوں جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ تو یہی صبح شام کی سچویشن ہوتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو کسی نہ کسی ڈیڈ باڈی، کسی نہ کسی ہلاکت، کسی نہ کسی انسیڈنٹ سے ہماری آنکھ کھلتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے لاشوں کی گنتی گنتے ہیں، جو کہ تقریباً اوسط 10 ہے کراچی کے اندر پچھلے کئی ماہ سے جو سلسلہ بہت شکریہ افضل ندیم ہمارے ساتھ تھے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی حکومت سندھ سے کہہ چکی ہے کہ اخبارات میں اشتہارات چھپوا دے کہ وہ شہریوں کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔